the syllabus, be it arts, commerce, science, or whatever. So coming to the constitutional values first, we know that the constitution of a country lays down the fundamental principles and values. And those principles and those values serve as the foundation for its legal and political system. And these principles and values are referred to as the constitutional values. So when we say constitutional values, these are the values which are fundamental and which underlie the structure and the governance of a country or the state. And these values are enshrined in our national constitution, which is also said to be the supreme law of the land. That is the biggest law, and these values are enshrined in the constitution. So some of the key constitutional values that are recognized in our constitution, those are set basically in the preamble to the constitution. That is the very first step where from the constitution starts with, that is the preamble to the Constitution of India. We are a sovereign nation, we are a socialist nation, we are a secular nation, we are a democratic nation, we are a republic also. So these are some of the constitutional values. Besides that, everyone should get justice, everyone should have the liberty, everyone should have the equality, dignity, fraternity. So these are all the components which are the part of the Constitution of India, which are known as the constitutional principles, which are known as the constitutional values also. So I'll be going a little bit in this different types of the values which we find in our constitution. So first of all, the sovereignty, that is one of the constitutional value. And this sovereignty, refers to the supreme power or supreme authority of the state within its own territory. Basically, it means that India is a self-governing nation, we all know, and that the right to make its own decisions are with the India. It is not having any external interference from the other countries. So in that way, we say that the Constitution of India that guarantees the sovereignty of the nation by providing it in the preamble to the Constitution, and also it is an independent nation, so it is free from any external interference from any of the country. And at the same time, the Constitution also provides for a federal system of the government. And federal system is simply like the powers and functions of the governance, those are divided between the center and the state. So this is one of the very specific feature of the Constitution of India also, which is a principle and a value which speaks and which is linked with the sovereignty also. And the Constitution also provides for an independent judiciary. Independent judiciary is just to uphold the Constitution, and it is also to ensure that the government operates within the limits of law. And at the same time, there is one more theory or one more system that works with the Constitution, that is the system of checks and balances. This checks and balances is just to ensure that the nation's interests are protected, because we all know that ours is a federal constitution, ours is a constitution which confers us the sovereignty. And in that way, the powers are divided. Powers are divided between the legislature, executive, and judiciary. So each one has to function in its own given jurisdiction, and one has not to interfere with the other's area. And that is how you see this doctrine of checks and balance also present in our constitutional provisions, which is just to ensure the nation and its interests that are to be protected. So the first value is the sovereignty.
Then we move further in the preamble itself, then we find that the socialism is the another core value on which the Indian constitution is based upon. And the Constitution of India enshrines various provisions that aims to establish a socialist society in the country. And मैम एक बिना में निवेदन था, मैम अगर आप बाइलिंगुअल रहते तो हम लोग की सहायता होती समझने में। ओके ओके नो प्रॉब्लम। सो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में जैसा मैंने कहा हमारे संविधान जो है वो सर्वोच्च कानून होता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। और उस सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिसको कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के नाम से, उनकी कोर वैल्यूज के नाम से भी जानते हैं। अभी मैंने बात की सॉवरेंटी की, संप्रभुता जिसको हम कहते हैं। सो हमारा जो संविधान है वो एक संप्रभु है। हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें किसी का इंटरफेरेंस, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। और इसके साथ ही साथ जो हमारी जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, वो भी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वो अपने निर्णय दे सकती है। और चेक एंड बैलेंस एक लगा हुआ है। ये सिद्धांत हमारे संविधान में मिलता है। वो किस लिए कि कोई भी अपने जो स्टेट के ऑर्गन्स हैं, जैसे मैंने कहा लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है, वो किसी में भी इंटरफेयर ना करें, वो साथ साथ अपना काम करते रहें और उनमें एक बैलेंस बना रहे। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट वैल्यू विच वी फाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो दूसरी वैल्यू की मैं बात करने जा रही हूँ दैट इज सोशलिज्म, जिसको हम समाजवाद भी कहते हैं। And this is also one of the very important core value which is enshrined in the constitution, or we can say the entire Indian constitution is based on this principle of socialism and social justice as such. तो ये जो principle है, this we find in the various provisions in the constitution, and particularly when we talk about the directive principles of the state policy, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वहां हमें दिखाई देता है कि ये जो सोशलिज्म का आइडिया है, समाजवाद का, वो वहां से बहुत ज्यादा हमें मिलता है। particularly Article 39 and Article 46, these are the greatest example of the socialism. 39 जो बात करता है that it directs the state to ensure the ownership and control of material resources, कि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, हमारी जो भी चीजें उपलब्ध हैं, उन सबको कम्युनिटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिससे कि हर किसी का एक समान रूप से उसका हित उसमें इन्वॉल्व होता है। सो आर्टिकल 39 इज लाइक दैट, एंड आर्टिकल 46 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच further strengthens the doctrine of the socialism as a core value, which again directs the state to promote the educational and economic interests of the weaker section. कि जो समाज में हमारा जो एक वीकर सेक्शन है, एक मार्जिनलाइज सेक्शन है, उसमें डिसेबल्ड हैं, उसमें SC ST हैं, उसमें विमेन हैं, उसमें एजेड पर्सन्स हैं, उसमें जो बीमार हैं उनको भी रखा गया है। तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनके जो एजुकेशनल और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट किया जाए और उनको सोशल जस्टिस मिले, उनके साथ किसी भी तरीके का कोई अन्याय, सोशल इनजस्टिस ना हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका शोषण ना हो। तो इस तरीके के प्रावधान भी दिए गए हैं विच स्पीक्स अबाउट द सोशलिज्म. So the constitution enshrines various other provisions also which aims to establish a socialist society in the country. And basically you find this in the chapter 4 or part 4th of the constitution, which is the directive principles of the state policy, राज्य की नीति निर्देशक तत्व. Next core value is the secularism. जो हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की, so secularism is the core value on which we find that the provisions are there in the Indian constitution itself, and the constitution of India guarantees the freedom of religion to all its citizens. So freedom of religion that prohibits the discrimination on the ground of religion. And basically अगर आप देखें तो आर्टिकल 25 से 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स का हमारा चैप्टर है, उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एज ए फंडामेंटल राइट हर किसी को दिया गया है। तो वो जो हमारा राइट है वो एक सेकुलरिज्म की तरफ भी हमको ले जाता है, जो हमारी कोर वैल्यू है, because article 25 to 28 in the constitution which provides for the freedom of religion
That includes the right to profess, right to practice, right to propagate any religion of one's own choice. So जो उसकी चॉइस है उस पर किसी तरीके का कोई फोर्स नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन मुताबिक किसी भी धर्म को वो मान सकता है, उसकी पूजा कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, उसके बारे में बातें कर सकता है, उसको प्रोफेस कर सकता है। तो ये तो एक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ सेकुलरिज्म को और अधिक बढ़ावा देने के लिए एक इक्वालिटी से रिलेटेड जो राइट है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि रिलीजन के आधार पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा. सो सेकुलरिज्म वाज आल्सो वन ऑफ द कोर वैल्यू. So far as the secularism and socialism is concerned, initially this was not directly in the preamble to the constitution. It was only after 42nd amendment that these two values have been inserted in the constitution, but the provisions were already there. Now after inserting this in the preamble to the constitution, it has made more clear that these are also the constitutional values which everyone has to follow and which are having its roots in the other provisions in the constitution. Then democracy. Democracy is one of the core value. So in the recent past, you must all have heard about that there was a slogan that India is the mother of democracy, and many of the seminars were also organized on the Constitution Day, 26th November. That was the main theme on which every educational institution has organized the seminars, symposia, or conferences, etc. And a book is also published with this title, Democracy, this India is the Mother of Democracy. So those core values which we find in the preamble to the Constitution as the democracy or democratic value, these are important, which simply means that the ultimate power resides with the people. जो हमारी शक्ति है वो सब किसमें है? आम आदमी में रिसाइड करती है. And that the government exists just to serve their interest. उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनको सर्विसेज प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट होती है एक डेमोक्रेसी में. एंड दिस वैल्यू इज टिपिकली एक्सप्रेस थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. एंड वी ऑल नो दैट हम हर किसी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए राइट टू वोट एक हमारा राइट है. 2023 2 मार्च से पहले क्या था? ये अपने आप में एक सिविल राइट था, लेकिन उसके बाद से अभी अनूप वर्णवाल का केस डिसाइड हुआ है मार्च में, फर्स्ट वीक में, एंड कोर्ट ने कहा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट. तो जब तक हमें वोट देने का अधिकार है, इसका मतलब हम अपने सरकार को चुन सकते हैं, और ये केवल डेमोक्रेसी में ही होता है. सो वी हैव दिस डेमोक्रेटिक वैल्यू इन आवर नेशन, and you must all have heard the definition, which is very unique and very appropriate for defining democracy, that is of Abraham Lincoln, that the government by the people, for the people, and of the people. So we are following that democratic values, and we have the general elections every 5 years, and we choose our members who are there in the parliament, who are there in the state legislative assemblies. जहां भी वो चुन के जाते हैं, हम उनको एज सिटीजन उनको चुनते हैं. और ये क्या है? एक डेमोक्रेसी का एक सीधा साधा उदाहरण है. एंड दिस इज जस्ट टू प्रोटेक्ट द सिविल लिबर्टीज ऑफ द कॉमन मैन. इट इज जस्ट टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ. इट इज टू प्रोटेक्ट द separation of powers also. So these are some values which we find in the constitution. Then republic is also our basic value, constitutional value. We are not like the countries. हम उन कंट्रीज की तरीके से नहीं है. पार्टिकुलरली अगर हम इंग्लैंड की बात करें, जहाँ पे किंग है, क्वीन है, मोनार्की है, जहाँ पे जो राजा और रानी है वही अपना हेड होगा, रिपब्लिक वहां पर नहीं है. लेकिन हमने अपने आप को एक रिपब्लिक गणराज्य बनाया, और ये हमने पहली बार अपने आप को इस तरीके से नहीं चुना, बल्कि ये हमारे यहाँ से प्रथा थी. चाहे वो अशोका के समय में हो, चाहे वो उसके आगे अगर हम देखते हैं जो और जितने भी वंश आए हैं, सभी में इस तरीके का एक गणराज्य की बात कही गई है. तो हमने भी उसी को चुना. और उस रिपब्लिक का मतलब होता है दैट द कंट्री इज अ स्टेट इन विच द सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल, बाय द कॉमन मैन.
or their elected representative rather than by a monarch or by a hereditary ruler. किसी heredity में नहीं मिला है बल्कि वो चुन कर भेजा गया है, elect करके भेजा गया है, तो ऐसा रिपब्लिक होता है. And the Constitution of India provides for a system of governance. उस तरीके के गवर्नेंस को हम लोगों ने अपने यहाँ लिया है संविधान के द्वारा, in which the president of the India is the head of the state. वो स्टेट का हेड होगा प्रेसिडेंट जो होगा राष्ट्रपति. And the Constitution also provides for the parliamentary form of government where the elected representatives of the people form the legislature and they are responsible for making the laws and the government is accountable to the legislature. तो ये क्या है, अपने आप में एक रिपब्लिक को हमने फॉलो किया है जहां पर हमारा प्रेसिडेंट जो है वो आम आदमी होता है और उसको चुनकर वहां भेजा जाता है. डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा उसको चुनकर भेजा जाता है. ये एक रिपब्लिक है. तो उस रिपब्लिक में इस तरीके की चीजें होती हैं जहां पे राजा रानी राज नहीं करते हैं बल्कि एक आम जनता का आदमी चुनकर जाता है और वो राज करता है. एंड वी कैन सी दिस इन आवर कंट्री ऑल्सो. अभी हमारी जो प्रेजेंट में जो हमारी राष्ट्रपति हैं ऑनरेबल मैडम द्रौपदी मुर्मू, तो आप जान सकते हैं कि वो एक एसटी कैटेगरी से आई हैं और उनको आदिवासी हैं, लेकिन क्योंकि ये किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं है हमारे यहाँ, जैसा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, हम एक सोशलिस्ट नेशन है जहां पर प्रोहिबिट किया गया है कि रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. तो ये उसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का एक नतीजा है कि आप देखिए हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं या और भी जो हमारे पद हैं उस पर हर कोई उसके लिए अगर एलिजिबिलिटी रखता है तो वो वहां पर पहुंच सकता है. सो वी आर ए रिपब्लिक. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द core value of the Constitution in India. Then come to another core values of the Constitution like justice. अगर हम justice की बात करें, न्याय की बात करें, so this is a very important value and principle which we find in the Constitution of India. And the people, the individuals that who violate the law, they should be held accountable. And that the victims of the injustice should be provided with the redressal, with the remedy. Justice is just a guiding principle that is to ensure the protection of the fundamental rights, that is to ensure the freedoms of all the citizens. Justice की जब हम बात करते हैं तो justice का मतलब ये है कि हर किसी को समान रूप से न्याय मिले, किसी के साथ कोई जो अधिकार है उनका उल्लंघन ना हो, जो उसकी स्वतंत्रताएं हैं वो उनको ठीक तरीके से अपना उसके प्रोटेक्शन मिल सके, उसकी सुरक्षा की जा सके. उस तरीके का जस्टिस हम अपने संविधान में एंश्योर कराते हैं एज ए वैल्यू. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एम्स फॉर जस्टिस विच इज सोशल, विच इज पॉलिटिकल एंड विच इज इकोनॉमिक ऑल्सो फॉर ऑल इट्स सिटीजन. जो प्रेम्बल है इसका, संविधान की उद्देशिका है जिसको हम कहते हैं, उसी में लिखा हुआ है कि हर किसी को जस्टिस सिक्योर कराना है. और वो जस्टिस कौन सा होगा? वो जस्टिस सोशल होगा, वो जस्टिस इकोनॉमिक होगा, वो जस्टिस पॉलिटिकल होगा फॉर ऑल द citizens. So the Constitution of India provides for the establishment of Supreme Court, High Court, subordinate courts. जस्टिस कैसे मिलेगा? तो उस जस्टिस को देने के लिए संविधान में ही प्रावधान किए गए हैं कि कुछ न्यायालयों को स्थापित किया जाएगा. तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जितने स्टेट्स हैं उनमें हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय होते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं. तो इन सबका पर्पस क्या है? दे आर ऑल रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग जस्टिस इज सर्व. कि हर किसी को न्याय मिल रहा है उसको एंश्योर कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन न्यायालयों की है, और ये हमारे संविधान का ही भाग होते हैं. And then the Constitution also recognizes the importance of providing access to justice to all the citizens. एक तो ये कि जस्टिस मिलेगा, जस्टिस कैसे मिलेगा उसके लिए न्यायालयों की स्थापना की गई. अब तीसरी जो बात आती है कि वो एक्सेस कैसे मिलेगा, हर कोई वहां पर पहुंच कैसे सकेगा उस न्यायालय में. So for this end also you see that the provisions are there in the Constitution which speaks about the free legal aid. Free legal aid for those who cannot afford legal representation. जो अपने लिए एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट नहीं चुन सकते हैं, उनके पास
पैसों की कमी है, तो ऐसे लोगों के लिए उसमें कुछ कैटेगरीज दी गई हैं। आर्टिकल 39A है हमारे संविधान का, जिसमें कुछ ऐसी कैटेगरीज दी गई हैं कि जहां पर व्यक्ति को एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव मुहैया कराया जाएगा उसको फ्री लीगल एड देने के लिए, सो दैट द पर्सन में एक्सेस टू जस्टिस, उनका भी जस्टिस लेने के लिए वो उसके अंदर एक्सेस हो सके, वो उसमें जा सके। तो जस्टिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कोर वैल्यू। देन liberty is there, liberty for all the individuals, that they have the right to pursue their own goals, to pursue their interests. They are to be free from any arbitrary interference by the government or other individuals. तो उनको liberties भी कुछ दिए गए हैं संविधान में ही। और ये सारे जो लिबर्टीज हैं वो पार्ट थर्ड में बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। और हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी बात कही गई है लिबर्टी, तो वो लिबर्टी ऑफ थॉट्स की बात करते हैं, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लिबर्टी ऑफ फेथ की बात करते हैं। एक तरीके से आप जिस रिलीजन को मानते हैं आप उसमें भी उसको वर्शिप कर सकते हैं, तो उसकी भी लिबर्टी दी गई है। देन इक्वालिटी, तो इक्वालिटी जो है वो एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल है जिसपे कि बाकी की सारे जो हमारी कोर वैल्यूज हैं वो भी बेस करती हैं। और इसका सीधा सा मतलब है दैट एवरी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी बिफोर द लॉ। उसको एक समान अवसर मिले, उसको समानता मिले, उसके जो राइट्स हैं उसका ठीक तरीके से प्रोटेक्शन हो और उसमें सब में इक्वालिटी हो। एंड देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन on the basis of religion, on the basis of race, caste, sex, place of birth, or any of the characteristics which is prohibited in the constitution, कि जिसको प्रोहिबिट किया गया है, जिसको निषेध किया गया है, ऐसी किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हर किसी को इक्वालिटी मिलेगी, इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट उसको मिलेगा, उसको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा और वो समाज में कानून के सामने इक्वल रहेगा, समान अवसर उसको प्रदान किए जाएंगे हर चीज के लिए। तो ये एक इक्वालिटी है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिकली संविधान का ये हिस्सा बनी, क्योंकि जो हमारी पीछे से जो हमारी एक हिस्ट्री चली आ रही थी उसमें कई तरीके के एक्सप्लॉयटेशन थे, कई तरीके के ऑपरेशन किए जाते थे, दबाव था, अत्याचार था, शोषण था, तो उसको कहीं हटाकर एक इक्वल स्टेटस हर किसी को मिले समाज में, स्तर उसका समान हो, इसके लिए एक इक्वालिटी को रखा गया एज ए फंडामेंटल राइट एंड ऑल्सो एज ए प्रीएम्बुलर ऑब्जेक्टिव, so that the persons who are belonging to different religions, different race, different caste, different sex, they may not be discriminated, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। Then dignity. So dignity is very important because if a human being is not provided with a dignity, जो मर्यादा और जो गरिमा की बात करते हैं, अगर उसको dignity नहीं प्रदान की गई, then the person is not to be considered as a human being, and that would be similar to that of the animal. So dignity is a very important value that ensures that every individual has inherent worth and value, and that he or she should be treated with respect and dignity. तो उसकी डिग्निटी को एंश्योर कराया जाए, उसको रेस्पेक्टफुल तरीके से देखा जाए, उसको समाज में वही हिस्सा दिया जाए, हर व्यक्ति को एक समान हिस्सा दिया जाए, तो उसके लिए डिग्निटी बहुत आवश्यक है। एंड दिस इज द कोर वैल्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Then fraternity is also very important, and that is again a core value which we find in the constitution. Fraternity is simply, we find that in the initial words of the preamble to the Constitution of India, which starts from "We the people of India." जब हम संविधान को उठाते हैं और संविधान में सबसे पहले प्रियम्बल दी होती है और उस प्रियम्बल जब वो शुरू होती है तो उसके 5 जो शुरुआती वर्ड हैं, "We the people of India", जो हम भारत के लोग, तो जब हम भारत के लोग हैं तो उसमें किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कही गई है, उसमें एक हार्मनी की बात कही गई है, उसमें हम सब की बात कही गई है। और जो फ्रैटर्निटी है, फ्रैटर्निटी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, so we find that fraternity starts with the preamble where from it begins with the phrase "We the people of India", and this refers to the spirit of brotherhood, common brotherhood, and
the sense of unity and integrity, and it relates with the common purpose that binds the people together. They are from diverse area, but they are together. कि एक communal harmony, एक social harmony, एक brotherhood की जो भावना है उसको लेकर जो चीजें चल रही हैं उसकी बात होती है, और उसको हम fraternity के नाम से जानते हैं. So it basically emphasizes the need for social harmony, where you find that there must be mutual respect among different communities. जो अलग अलग communities के लोग हैं उनमें एक आपसी respect हो, उनमें एक आदर की भावना हो. Fraternity also promotes the idea that everyone should have the opportunity to participate in social, cultural and economic life of the nation. कि हमारे जो देश में जो संस्थाएं हैं और हमारे देश की जो कलाएं हैं, हमारे देश में जो भी चीजें हो रही हैं हमारी लाइफ से रिलेट करती हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, इकोनॉमिक, आर्थिक हो, उन सब में समान रूप से पार्टिसिपेट किया जा सके. एंड एक सोशल कोहेशन एक होना चाहिए. सो बेसिकली फ्रैटर्निटी एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ social cohesion also, where communal harmony and a sense of a shared responsibility is to be there for well-being of the nation. So you see that fraternity is something which is related towards the well-being of the nation, where there is a shared responsibility of every individual, where the individual has to work with social cohesion, where he has to be live with the spirit of the common brotherhood, and there shall not be any communal harmony or difference in the communities, and it has to result in social harmony and mutual respect. So this fraternity bhi jo hai, that is our core value which is given in the constitution. Then fundamental rights, as we all know that fundamental rights are very important, because part third of the constitution provides for the fundamental rights. And when we talk about the fundamental rights, then there are many rights which have been conferred to all, but some of the rights are given to the citizens and some of the rights are given to the person. अगर हम लॉ पढ़ते हैं तो हम इसको अंतर को समझते हैं कि एक पर्सन कौन है और एक सिटीजन कौन है, नागरिक कौन है. So a citizen is basically a natural born person, a citizen who has acquired the citizenship of the country. वो चाहे शादी से प्राप्त की है, अडॉप्शन में आए हैं, या फिर वो अप्लाई किया है दूसरे देश से इस देश की कंडीशंस को पूरा करते हुए, या यहीं पर जन्म लिया है, तो वो सिटीजन है. और पर्सन की जब हम बात करते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं, तो व्यक्ति नेचुरल बॉर्न भी होता है और एक लीगल पर्सन भी होता है. हमारी लॉ की भाषा में उसको हम लीगल पर्सनालिटी कन्फर करते हैं, जिसकी अपनी एक मोहर होती है, एक परपीचुटी लगातार वो चलता है, लाइक यूनिवर्सिटी सिस्टम से हैं या कॉलेज से हैं. सो दे आर कंसिडर्ड टू बी द लीगल पर्सन. वो अपने नाम से केस फाइल कर सकते हैं, उनके नाम से केस हो सकता है. तो अलग अलग तरीके से हैं. ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पर्सन और सिटीजन्स को मिले हुए हैं. तो जो सिटीजन्स को हैं बेसिकली वो लिबर्टीज ज्यादा मिले हुए हैं, जिनको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको मिला है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिला हुआ है. इंडिया में कहीं भी वो घूम सकता है, वो बोल सकता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है कोई भी नागरिक. इसके साथ ही साथ वो कहीं पर भी ट्रैवल करने के साथ कहीं भी वो रिसाइड का सेटल भी हो सकता है. अपना व्यापार जो उसको है, फ्रीडम ऑफ दिस बिजनेस एंड ट्रेड एंड प्रोफेशन, वो कुछ भी ऐसा कर सकता है. तो इस तरीके की कुछ फ्रीडम्स जो हैं वो सिविल सिटीजन्स को मिले हुए हैं. जो राइट्स की हम बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स पर्सन्स को, तो उसमें लाइफ एंड लिबर्टी का, पर्सनल लिबर्टी का उनको अधिकार मिला हुआ है. उनको रिलीजन का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार मिला हुआ है. जो हमारे पर्सन्स हैं उनको एक अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी अधिकार मिला है, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती थी और इस तरीके से बेगार, फोर्स लेबर, तो इन सब को अबॉलिश करके भी हमें अधिकार मिले हैं. बिसाइड्स कि हमें इक्वालिटी का तो राइट है ही, कि हर किसी को एक समानता का अधिकार दिया गया है. लेकिन ये जितने भी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, कोर वैल्यू हैं. लेकिन इस कोर वैल्यू को और अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए हमारे जो हमारी कंडीशंस थे हिंदुस्तान में, उनको साथ लेकर चलते हुए इन सभी जो अधिकार हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगे हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं.
और ये राइट्स जो है अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। तो एब्सोल्यूट नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कानून बने हुए हैं जिनके आधार पर इन अधिकारों को हम उसको ले सकते हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं अपने लिए, और हम उसको उसका कह सकते हैं कि हम उसको एंजॉय करते हैं अपने अधिकारों को। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं ये हमारे संविधान में लिखी हुई हैं, और इसके साथ कुछ ऐसे अलिखित चीजें भी हैं जो हमारी कोर वैल्यूज को रिलेट करती हैं। जैसे कि संविधानवाद की हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज देयर, then constitutional morality is there, constitutional fraternity is there. These are some values which can be seen through many of the principles. जैसे कि हम बात करें रूल ऑफ लॉ की, विधि का नियम होगा कि सर्वोच्च है वो, किसी व्यक्ति का नियम नहीं चलता है, किसी भी बात को करने के लिए यहाँ पे क्या है, कानून बना हुआ है और उस कानून के अनुसार ही देश चलेगा। इसी तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि जितनी भी पावर्स हैं वो बटी हुई है, विभाजन है उनका, पृथक्करण है उनका, इसमें जो तीनों अंग हैं हमारे राज्य के उसमें बटा हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे कुछ और भी प्रिंसिपल्स हैं जो लिखित रूप में हमें संविधान में नहीं दिखाई देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट है उसमें नहीं दिखते हैं, बट अदरवाइज these are few core values which we find in the constitution, which every one of us is entitled to enjoy because we are the citizens of the country, and as a citizen this constitution is for us because it confers, it starts with the we the people of India in the preamble, and it lasts with the 5 words to give ourselves this constitution, कि हम अपने आप को ये संविधान देते हैं, आत्मसमर्पित, अपने आत्म अर्पित करते हैं अपने आप को। तो ये क्या है, ये हमारा संविधान है, ये हमसे बना है, ये हमारे लिए बना है, और इसमें जो कुछ भी है वो सब हम ही से निकल कर आ रहा है। इसलिए जो कोर वैल्यूज हैं हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना है कि एज ए सिटीजन, एज ए पर्सन, हम अपनी डिग्निटी को कैसे मेंटेन कर पाए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन कर पाए, हमारी जो लिबर्टी है हम उसको कैसे एंजॉय करें जिससे दूसरों की लिबर्टी का नुकसान ना हो, हम अपनी इक्वालिटी को कैसे एक्सरसाइज करें जिससे कि हम समाज में अपनी समानता का अधिकार ले सकें। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं ये सब हमारे ऊपर भी होती हैं कि हम उसको कैसे एंजॉय कर सकते हैं। सो बीइंग ए गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री, this is our fundamental duty also, this is our fundamental right also, that we have to take care of the constitutional values. So this was something about the constitutional values which we find in our constitution. Some of the values are written, some of the values are given by the judicial interpretation. As I told you that constitutionalism, constitutional morality, fraternity, and all these things are related to the constitutional values, but these are the